So good morning student, how are you all? So student, today I will take your second GK class because first GK class I had taken on Monday when I had taught you ancient Indian literature lesson number 8, and today we will read lesson number 9, which is all about Olympic. So this is your second GK class because now you all have two periods in a week. First period is on Monday and second period is on Thursday. So today is Thursday, so today I will take your second GK class. Okay, so student, this is your lesson number 9, which is all about Olympic. It is on page number 16. So if you all have book, so just open your book and do reading with me. Okay, one thing I would like to say to all the student, that is you all do not watch video properly. आप सभी वीडियोस को अच्छी तरह से नहीं देखते हो, इसीलिए आप लोगों के माइंड में ढेर सारी कन्फ्यूज़न रहती हैं। जो भी वीडियो टीचर्स आपके लिए बनाते हैं उसे आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, देन यू विल अंडरस्टैंड द लेसन. सो जस्ट लिसन द एक्सप्लेनेशन केयरफुली विच हैज़ गिवन बाय योर टीचर. ओके, that is why today I will not send any kind of PDF for you. You just have to watch the full video and fill the answers in your book, then write question and answer in your copy. All questions you have to write in your copy. In this lesson there are 10 question has given, so all 10 questions you have to write in your copy. Okay, वीडियो को देखकर ही आपको आपकी कॉपी में सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं, जैसे आप नॉर्मल क्लासेस में करते थे जब हमारी क्लासेस स्कूल में लगा करती थी. आप लोग क्या करते हैं, वीडियोस आपके लिए बना दी जाती है तो आप उसे कभी भी ओपन करके स्टडी करते रहते हैं, लेकिन अभी आपको ऐसा नहीं करना है. जो टाइम टेबल आपको दिया जाता है उसी टाइम टेबल के हिसाब से आपको अपनी स्टडी पूरी करनी है. आपको वर्क पेंडिंग में नहीं डालना है कि आप शाम को जाकर वीडियो ओपन करके अपनी स्टडी को पूरा करेंगे. अगर टीचर्स आपके लिए टाइम निकाल कर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाते हैं, आपको पढ़ाते हैं, तो आपको भी अपना काम टाइम पर ही ख़त्म करना है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द लेसन. सो वन बाय वन आई विल रीड all the questions, so just fill the answer in your book. Okay, so this is question number 1. The first modern Olympic Games held under the International Olympic Committee was hosted in dash Tokyo, Athens in 1896. So in हिंदी जो पहला ओलंपिक गेम हुआ था वह कहाँ हुआ था, टोक्यो में या एथेंस. सो इफ़ यू नो द आंसर जस्ट फिल द आंसर इन योर बुक. इफ़ यू डोंट नो then don't worry, I will tell you. The right answer is Athens. Athens is the right answer of question number 1. Now question number 2 is the dash winter / monsoon Olympic are held every 4 years, 2 years after each summer Olympic. In Hindi, the dash यानी जो ओलंपिक गेम होते हैं वह हर 4 साल के बाद, हर 2 साल बाद भी होते हैं, तो वह कौन से ओलंपिक गेम है जो हर 2 इयर्स में हो जाते हैं, विंटर और मॉनसून. सो द राइट आंसर इज विंटर ओलंपिक. यस, द राइट आंसर इज विंटर ओलंपिक. सो जस्ट फिल विंटर in question number 2. Now question number 3 is the Summer Olympic of 1936 held in dash Berlin / London were the first Olympic game to be broadcast on television. In हिंदी जो पहला समर ओलंपिक 1936 में हुआ था वो जिसको सबसे पहली बार टेलीविज़न पर ब्रॉडकास्ट किया गया था, तो वह कहाँ हुआ था ये हमको बताना है, बर्लिन और लंदन. सो द राइट आंसर इज यस, Berlin. Berlin is the right answer. Now question number 4 is the Olympic torch was first lit in 1928 at dash Beijing / Amsterdam. In हिंदी जो ओलंपिक टॉर्च को सबसे पहले जलाया गया था 1928 में, तो वह किस शहर में जलाया गया था, बीजिंग में और एम्स्टर्डम. द राइट आंसर इज
Amsterdam. Yes, Amsterdam is the right answer. Now question number 5 is, months before each game the Olympic dash candle slash torch is lit in Olympia, Greece the site of the ancient Olympic. In हिंदी, कई महीनों पहले, मतलब कई महीनों पहले से ही जब ओलंपिक गेम होने लगते हैं तो कैंडल या टॉर्च में से किसी एक चीज़ को जला दिया जाता है ओलंपिया ग्रीसी द साइट ऑफ एंशियंट ओलंपिक, जो कि इनकी एक बहुत ज़्यादा पुरानी प्राचीन जगह है, वहाँ पर इस टॉर्च को या कैंडल को जलाया जाता है। तो हमको बताना है कि किस चीज़ को जलाया जाता है, कैंडल को और टॉर्च को। सो डेफिनेटली द राइट आंसर इज टॉर्च. This is torch. Now question number 6 is Pierre de Coubertin slash Design de Duama slash is considered the father of the modern Olympic game. या इन हिंदी इन दो व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं जिसमें से हमको बताना है कि किसको फादर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कहा जाता है. सो द राइट आंसर इज पियरी डी काउटन. पियरी डी काउटन इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. सो जस्ट फिल द आंसर इन क्वेश्चन नंबर 6. दिस इज फिल इन द ब्लैंक. कॉपी में भी आपको क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक ही डालना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज डैश China slash Greece leads the march past at the opening ceremony of every Olympic. This is so because of Olympic oriented there. In हिंदी, चाइना और ग्रीसी में से जो भी देश पहला है वो सबसे पहले मार्च पास्ट करता है ओपनिंग सेरेमनी में हर ओलंपिक गेम में. सो अब हमको यह मालूम करना है कि चाइना और ग्रीसी में से वह कौन सा देश है जो सबसे पहले मार्च पास्ट करता है. सो द राइट आंसर इज Greece. Yes, Greece is the right answer of question number 7. So question 7 is completed. Now question number 8. The dash host slash guest countries athletes are the last to enter the stadium. यानी कि होस्ट और गेस्ट कंट्री में से वह कौन सा देश है जो सबसे लास्ट, मतलब वह टीम है, देश नहीं, जो सबसे लास्ट स्टेडियम में एंटर करती है. सो द राइट आंसर इज होस्ट. होस्ट कंट्री है जो वो सबसे लास्ट स्टेडियम में एंट्री करती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज इन रियो ओलंपिक 2016 डैश यूएसए स्लैश चाइना फिनिश एज द टॉप विनिंग डैश 56/46 गोल्ड मेडल एंड 121 मेडल ओवरऑल. इन हिंदी, रियो ओलंपिक जो कि 2016 में हुए थे उसमें से किसने, यानी यूएसए और चाइना में से किसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे, जो कि ओवरऑल 121 मेडल्स थे, जिनमें से लगभग 56 या 46 में से गोल्ड मेडल थे. तो इस क्वेश्चन में हमको दो तरह के फिल इन द ब्लैंक है. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में हमारा राइट आंसर आएगा इज़ यूएसए. द फुल फॉर्म ऑफ यूएसए इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. And the second fill in the blank, the right answer is 46. तो यूएसए ने 46 मेडल जीते थे. इनमें से 46 सिर्फ गोल्ड मेडल थे रियो ओलंपिक में, और टोटल मेडल जो उन्होंने जीते थे गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, वो पूरे टोटल 121 मेडल थे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 हैज़ completed. And the last question of this lesson, question number 10. The first winter Olympic games were held in dash चैमोनिक्स स्लैश पेरिस इन 1924. जो पहला विंटर ओलंपिक गेम्स हुआ था वह इन दोनों जगहों में से कहाँ हुआ था, चैमोनिक्स और पेरिस. द राइट आंसर इज चैमोनिक्स. द राइट आंसर इज चैमोनिक्स. सो स्टूडेंट, this is your lesson number 9 all about Olympic. So here your lesson has completed. Now just write all the questions in your copy. Your question is fill in the blank. Just write all the questions in your fair copy and learn all the questions, okay? Because after some time I will take your revision test and this is surprise test for you all, okay? यह टेस्ट आपके लिए सरप्राइज रहेगा, इसीलिए आपको रीडिंग नहीं बंद करना है, आपको लर्न करते रहना है, क्योंकि आपका सरप्राइज टेस्ट कभी भी हो सकता है. ओके,
So just write all the questions in your copy. Okay, till then, stay home, stay steady. Bye bye.